Hello everyone. Today on the Desi Hustle, we are joined by Monica, whose journey beautifully captures how motherhood can unexpectedly spark a whole new career path. After leaving her corporate job in Delhi, post marriage, and relocating to Hyderabad, Monica found herself navigating the classic Desi dilemma, balancing traditional expectations with her desire to create something meaningful. She then started as an anonymous food blogger, sharing recipe videos because let's be real, we all know how judgmental our community can be. Monica's life took a delicious turn when she became a mother. Her Instagram account shared Rahil Ka Dabba posts, which began as a simple way to share her cooking journey, but when the pandemic hit, it transformed into something much bigger. While many of us were struggling with what to cook today, आज हम क्या खाना बनाएं, Monica was busy building a community of 100,000 genuine followers who tune in to learn how to make everyday food from loki to creative after school snacks for kids. No fancy ingredients, no complicated techniques, just real practical cooking that resonates with all of us. What I love about Monica's story is how she turned what someone might see as limitations into opportunities. From being hesitant to show her face on camera to becoming a trusted voice in thousands of Desi kitchens, her journey reminds us that sometimes the most authentic path is the one we least expect. Today, we'll chat about her transition from corporate life to content creation, how she handles being a public figure while maintaining her privacy, and of course, her top tips for those days when your kid refuses to eat that sabzi that you spent an hour making. Welcome, Monica. We'll just quickly jump into the first question. Tell me, how, plan your day, what your day looks like, what your daily routine looks like. My day starts at 6 a.m. उसके बाद राहिल का स्कूल है, so I have to prepare. My husband also is there. He helps me with most of the things like राहिल को ready करना, उसका bag pack करना and everything. Meanwhile, उसके बाद फिर we just start the day. राहिल को school drop करके we just go for walk. We have breakfast and then the day begins. Before Rahil comes from school, मेरा have something to shoot. I have to plan content and everything, any email or whatever anything related to content creation. वो सब मैं राइल के स्कूल के आने के पहले I try and wrap it. I also post before, I have like a posting schedule, so मैं राइल के स्कूल के आने के पहले ही पोस्ट कर देती हूँ ताकि जब वो घर आए, so I have get time to spend it. उसके बाद मैं कुछ काम नहीं करती हूँ. Like 3 o'clock के बाद I have nothing major to do. Only I only spend time with Rahil. Very interesting. So, let's talk first about like you told me, you were an anonymous blogger, and from there, now you show your face on Instagram. Like everybody knows Monica का face कैसा मतलब दिखता है. You might have bumped into people, who say, अच्छा, तुम तो Monica Blends वाली Monica हो. What gave you that confidence to finally take that step? I honestly, मुझे पता नहीं, I was not very camera friendly also, and then reels happened actually Instagram back in 2020. Right. और तब तक I used to only share recipes और राहिल क्योंकि राहिल was very young, तो मैं उसके videos लगाती थी. Nobody used to shoot me और मुझे खुद से अपने आप को shoot करना भी नहीं आता. तो reels happen और reels आया तो now how everything changed on Instagram. Correct. So it became mandatory. मतलब थोड़ा बहुत at least just show yourself ताकि people know who you are. So बस that's how it happened. उसके बाद तो reels का आ गया इतना, तो अब it's like you have to be present on reels. मतलब you have to show. There's Correct. no फिर इतना सोचना ही नहीं पड़ा. I started just ठीक है, जैसी भी हूँ, जैसी भी लग रही हूँ, I have to just show up. That's all. That's all I think and that's all I do. मैं उतना बस रील्स हैपन एंड रील्स ओनली मेड इट हैपन कि मैं आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं कैमरा पे आकर आई कैन टॉक टू समवन और शूट अ रील और एनीथिंग. मुझे
इनिशियली आई रिमेम्बर मुझसे ना जब एनी वीडियो जिसमें आई हैव टू टॉक, मुझे वो वीडियो मुझसे शूट नहीं हो, मतलब आई यूज्ड टू फंबल, मैं भूल जाती थी मुझे क्या बोलना है, बट देन स्लोली इवेंचुअली मुझे आई गॉट यूज्ड टू इट, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी ऑब्वियसली बढ़ गया, तो नाउ आई एम ओके। प्लस अब इतने लोगों को मेरे सोसाइटी में, इट्स अ ह्यूज सोसाइटी, एंड एवरी टाइम आई गो डाउन, मतलब मैं तो ऐसे ही चले जाती हूँ, आई डोंट केयर कि मैं कैसी लग रहा है, जस्ट गो आउट, क्योंकि मुझे जाना है। अब हर बार यू कैन नॉट गेट रेडी कि Correct. एकदम प्रिम एंड प्रॉपर होकर आप नीचे जा रहे हो जस्ट फॉर अ स्ट्रोल, और जस्ट राहिल को एक वॉक पे लेकर जा रही हूँ, तो आई जस्ट गो, आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ, नथिंग लाइक अ कुछ। तो अब कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो गया है, बहुत ज्यादा, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, आई एम डूइंग It's still better than those anonymous vlogs. बेटर। वो एनोनिमस के बारे में तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली शेयरिंग अबाउट इट, अदरवाइज आई डोंट थिंक एनीवन नोज। But I think we all started like that, right? Like we all had that fear कि अच्छा now what? अगर कोई मुझे ऐसे देखेगा will they judge me? मतलब क्या सोचेगा मेरे बारे में? So based on this, like when we were talking, you have built an authentic followership, like 180K. So whenever you're shooting something, whenever मतलब दिमाग में आता है कि अच्छा मैं ये बनाऊं, what is it in Monica Blends का account that helps the audience connect with you? It actually started with recipes only. It started with राहिल का डब्बा, which was like a huge hit जब मैंने उसको किया था start. And उसके बाद तो टिफिन thing became very common, but जब मैंने start किया था nobody was doing it, and राहिल का डब्बा the hashtag became very popular. Correct. It was like more like fancy dishes नहीं होती थी, but बहुत simple everyday food को interesting बनाना, like I clearly remember those small flower shape और heart shape की पूरियाँ जो मैं घर पे मतलब राहिल को बनाकर देती थी। I used to have जैसे बीटरूट कलर्स बच्चों को बहुत अच्छे कलर्स ऑन द प्लेट, और तो मैंने उसी तरह से शुरू किया था टू मेक इट कलरफुल, but it's easily available, ingredients are easily available in the kitchen, and बहुत जल्दी बन जाए, you can do the preps right, एक रात पहले आप कर सकते हो, so I think Right. that is what most of my recipes are about, simple, easily available ingredients के साथ, तो I think वो बहुत क्लिक किया था लोगों को शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था पेज, और राहिल ऑब्वियसली, राहिल भी, मतलब पीपल यूज्ड टू लव लिसनिंग टू राहिल, और वो बहुत छोटा था, बहुत बातें करता था, और उसकी वो ही यूज्ड टू टॉक लाइक मैं आऊंगी, मैं जाऊंगी, I मैं खा remember that. लूंगी, I yes, so remember that that. became actually very popular, so people used to love him, and हमारे conversations, and बस यही रिलेटेबिलिटी थी, आई थिंक आई हैव जस्ट कंटिन्यूड दैट, इट्स जस्ट दैट कि राइल अब कम आता है मेरे पेज पर, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स ग्रोन अप, प्लस स्कूल है, ही हैज नो टाइम, बट ट्राइंग कि मैं उसको ही आगे करूँ ताकि पीपल आर एबल टू कुक सिंपल इंग्रेडिएंट्स, लाइक अभी दिवाली पे मैंने काफ़ी सारे पुरानी रेसिपीज, मतलब आई सॉ पीपल ट्राइंग माई ओल्ड रेसिपीज इजीली, मतलब Right. इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं, दैट वेरी इजी टू मेक। अब मैं ये नहीं देखती हूँ कि इट्स हेल्दी और नॉट, आई एम एडिंग शुगर इन इट और नॉट, क्योंकि लेट्स फेस इट, मेजॉरिटी स्टिल कुक प्रिफर्स कुकिंग विद शुगर, घर में यूज होते हैं, Correct. एल्डर्स यूज करते हैं, नॉट एवरीवन इज जागरी फ्रेंडली, और लाइक्स जागरी और डेट, सो आई स्टिल कंटिन्यू, मतलब मैं इतना नहीं सोचती हूँ कि मुझे हेल्दी बनाना है या नहीं बनाना है, आई जस्ट वांट पीपल टू नो कि आप बना सकते हो यार, दिस इज समथिंग दैट यू कैन मेक इट अप, तो बस उसको लेकर ही मैं आगे बढ़ती हूँ फॉर रेसिपी, बाकी आई थिंक अदर टिप्स एंड बिट्स वो मैं इधर उधर ऐसे ही शेयर करती हूँ, नथिंग प्लान्ड, और बट रेसिपीज में आई डू फॉलो कि मुझे मुझे लगता है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है आई विल शेयर दैट, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि मुझे अच्छा लग रहा है तो माई ऑडियंस विल ऑल्सो लाइक, बहुत बेसिक Correct. रेसिपीज मेरे, मुझे पता है कि आई पीपल लव माई बेसिक सिंपल एवरीडे रेसिपी, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, बिकॉज दैट्स माई पेज इज ऑल अबाउट। So, like we all love your everyday recipes, like, but have you ever felt that pressure to, make fancy recipes, because दूसरे जो
ट्रेंडिंग फूड इन्फ्लुएंसर्स है, दे आर मेकिंग समथिंग ट्रेंडिंग, समथिंग फैंसी, तो कभी वो प्रेशर फील हुआ है दैट आई वांट टू मेक समथिंग फैंसी? नहीं, मुझे इससे प्रेशर कभी फील नहीं होता है, लाइक कि मुझे फैंसी अपना करना है, बट येस आई डू फील विथ इवेंचुअली जैसे चीज़ें बदल रही हैं ऑन इंस्टाग्राम, द वीडियोज, द वे इट्स बीन शॉट एंड एवरीथिंग. हाँ, आई डू फोकस ऑन दोज थिंग्स. दोज एस्पेक्ट्स आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इवॉल्व करने के लिए. आपको यू हैव टू कीप चेंजिंग, यू हैव टू कीप डूइंग बेटर क्वालिटी वीडियोज, बेटर वीडियोज. तो मेरा फोकस बस उस पर ज़्यादा रहता है, ना कि इस पे कि मुझे फैंसी डिशेज बनाना. I will improve my work. I will improve the quality of my work, but I will stick to what I, you know, मेरा जो काम है जिससे मैंने शुरू किया था. I still am very much into it. But yes, I have improved my video quality. I have improved my shooting. कैसे शूट करना है, कौन से एंगल से शूट करना है, those things have definitely improved. अभी भी सीख रही हूँ, रोज नई नई तरह से ट्राई करती हूँ कि प्रेजेंटेबल बनाऊँ. That's my focus is all about. सो नो प्रेशर एट ऑल? नो प्रेशर, ये सब में बिल्कुल प्रेशर नहीं है. I know my recipes are being loved by so many people, so I'm like very much satisfied and I'm very much ऐसे ही करना. So, we all have our days, जब when nothing seems to work. अगर कुछ recipe, I mean, obviously, you try your recipes before, you put out the videos and you show it, कि, आज मैं ये try कर रही हूँ. Yeah, you're trying something and I'll put out something, when it works. So, there are days जब कुछ काम नहीं कर रहा है, everything is, मतलब recipe flop हो रही है. जहाँ शूट कर रहे हो वहाँ की लाइट खराब हो गई है, or there's not proper lighting. I mean, you've shared all that. Rahil is not maybe in a good mood, he needs you. So agar if there's a day when all of it happens at the same time, how do you deal with that overwhelm वाले थोड़ा clip कर moments? लेती हूँ, थोड़ा रो लेती हूँ and go about my day. और क्या ही कर सकते हो यार आप, कुछ नहीं कर सकते हो ये सब में. These things are not in your control. Eventually मैंने सीख लिया है, things that are not in your control, please let it. मतलब 2 मिनट में समझने की कोशिश करती हूँ कि क्यों आई एम फीलिंग बैड, बट फिर ठीक है, वो मेरे हाथ में नहीं है, पहले जितना प्रेशर, पहले मुझे बहुत प्रेशर होता था. ऑब्वियसली इवेंचुअली आई हैव लर्न टू डील विद इट. अब मैं ये भी नहीं देखती हूँ, सम डेज आर लाइक दैट कि अभी आई रिसेंटली इट हैपेंड, आई वाज नॉट इन अ वेरी गुड फेस. मतलब आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मतलब इट वाज माय प्रेगनेंसी डेज अभी जो बिगनिंग के थे. तो ऑब्वियसली मैं काम भी कम कर रही थी एंड फूड अवर्जन्स होने लगे थे काफ़ी. तो आई वाज लाइक, एक दिन मैंने ऐसे रैंडमली आई जस्ट वोक अप, आई साइड में है एंड आई जस्ट वेंट टू द किचन एंड स्टार्टेड बेकिंग. अब वो ना, मैंने सोच लिया था कि मुझे वो बनाना है, आज तो मैं शूट करके ही रहूँगी. सो आई जस्ट वेंट इनसाइड द किचन एंड नथिंग वर्कड आउट. तो फिर भी व्हाट आई डिड वाज कि मैंने जो भी क्लिप, मुझे वो वीडियो इतना खराब लग रहा था ना मुझे खुद भी, बट आई वाज लाइक नहीं यार, मतलब दिस इज नॉट द टाइम टू लुक फॉर परफेक्शन, दिस इज द टाइम टू जस्ट यू हैव टू बी एक्टिव ऑन द पेज. तो आप जो कर रहे हो, जितना कर पा रहे हो, जस्ट गो अहेड. तो मैंने उसको जितना कर सकती थी, मैंने उसको 1-2 क्लिप को थोड़ा एडजस्ट कर दिया. फाइनल शॉट्स को मैंने चेंज कर दिया कि इट लुक्स प्रेजेंटेबल, ताकि वो फर्स्ट फ्यू शॉट्स में ठीक लगे, बाकी बीच के वीडियो में जैसा भी लग रहा है इट्स फाइन. तो आई जस्ट डिड दैट. तो अब वैसा हो गया. परफेक्शन के लिए आप हमेशा यू कैन नॉट जस्ट लुक फॉर परफेक्शन ऑल द टाइम. तो अभी कभी कभी यू जस्ट लेट इट गो, बस कर ले. दिस रिसेंटली हैपेंड, तो मुझे लगा कि नहीं, परफेक्शन बिल्कुल नहीं देखना है, दिस इज नॉट द टाइम टू लुक फॉर परफेक्शन. बट कभी कभी ये सब भी होता इनफैक्ट आई वॉज गोइंग टू आस्क यू कि कभी ऐसा हुआ है कि फाइन जब यूर शूटिंग अ रेसिपी एंड इट हैज नॉट टर्न आउट वेल और उसको फ्यूजन बना के प्रेजेंट कर दिया कि दिस इज अ न्यू वर्जन ऑफ द रेसिपी, ऐसा भी हुआ है कभी? है. नहीं, नॉट. मैं फ्यूजन रेसिपीज में बहुत कम बिलीव करती हूँ, मुझे उतना पसंद नहीं है. मुझे पर्सनली आई डोंट लाइक इट, तो मैं उतना एक्सपेरिमेंट भी नहीं करती. तो नहीं, अगर नहीं अच्छा बना है, फाइनल ट्राई ट्राई की. कभी कभी होता है ना, मिडिल में आप शूट कर रहे हो और यू फॉरगेट अ फ्यू टू ऐड अ फ्यू इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, वैसे तो मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ पहले से, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि आप करके रखा है, फिर भी आप यू जस्ट फॉरगेट टू ऐड. तो फिर यार मैं अब उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती. तो आई जस्ट स्किप एंड आई राइट इन द कैप्शन कि यार मैं भूल गई थी ऐड करना वीडियो में. तो यू जस्ट हैव टू डू दैट. तो वैसे भी, वरना ऐसे डिजास्टर जो होते हैं वो मैं शेयर ही नहीं करती.
the videos get deleted या फिर मैं जो clip रख लेती हूँ to use it later. Mostly I don't share. जब तक वो रेसिपी एकदम परफेक्ट नहीं होती है तब तक आई डोंट शेयर, ताकि मुझे द पॉइंट इज कि जब लोग ट्राई करें ना तो उनको गड़बड़ ना हो। तो ऐसा Right. नहीं है कि अब मैं बना के मैंने ऐसे जो बना रही हूँ खराब बन गया और फिर भी उसको मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। आई डोंट डू दैट, क्योंकि मुझे पता है कि पीपल ट्राई द रेसिपीज एंड फिर उनको काम नहीं करेगा तो इट विल बी मतलब अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आई जस्ट मेक श्योर कि जब वो रेसिपी एकदम परफेक्ट हो तभी मैं In fact, your followers are such कि if you put the story up at 8 o'clock, वो 8:30 बजे वो try करेंगे because you've put it up. यू आर राइट, यू आर राइट। तो इसीलिए इसीलिए आई मेक श्योर कि मैं जब भी जो भी शेयर करूँ एकदम फुल प्रूफ हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। एंड आई ऑल्सो शेयर द नोट्स की दिस इज व्हाट यू कैन डू, दिस इज व्हाट यू कैन, मतलब कुछ ऐसा हुआ तो ऐसा भी कर सकते हो। So that is what I do. I make sure all the recipes I tried and tested by me multiple times before it goes live on my page. That is what I am doing. मतलब इसको मैं अभी तक I have started doing. मैंने बहुत पहले से इसको किया है and I still do. Uh, we spoke about how you moved from Delhi to Hyderabad and then starting your own channel and then coming to Instagram. So in a way, it seemed like a classical story, मतलब जब आपकी शादी हो गई, you became somebody's wife, somebody's daughter-in-law, and then you became somebody's mom. How did you, transition from that phase to becoming Monica, who is Monica the woman, and not Monica the mom or Monica the wife? मैंने आई थिंक मेरी शादी के बाद ऐसे कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ था, बिकॉज आई मूव, मैं दिल्ली में थी, फिर माई इन-लॉज आर इन पटना, so I stayed a few days with them after शादी, एंड उसके बाद कभी उनके साथ रहना नहीं हुआ। I just came to Hyderabad and I was staying with my husband, तो कभी वैसा फील नहीं आया कि ऑब्वियसली देयर वाज अ ह्यूज चेंज। शादी हो गई है, घर का प्रेशर, ये सब बहुत कुछ हुआ था, बट आई थिंक मतलब होता है ना, इंडिविजुअली आपने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, Right. मतलब बिकॉज उतना प्रेशर नहीं था। मी एंड माई हस्बैंड वी यूज्ड टू डू थिंग्स एट आवर पेस, उतना कुछ फैमिली प्रेशर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब इट वाज वेरी इजी इनिशियल डे। और फिर वी विल लाइक हम लोग मतलब साथ में रहना आफ्टर लाइक नोइंग ईच अदर फॉर लाइक सम टाइम, तो आई डोंट थिंक उस टाइम में ज़्यादा चेंजेस थे। The major change happened after Rahil. When I think I changed as a person, बहुत responsible. I won't say I'm very responsible अभी भी, but yes, obviously वो एक sense of responsibility आ जाती है towards your child. उसकी पूरा मतलब my entire life revolves around. Right. मतलब that is the reality. मैंने I think 3 years from the मेरा first few months was very difficult after delivery. उसके बाद जब when I came back to Hyderabad when I was 5 months old, I just मैंने अपना पूरा टाइम उसको दे दिया, रूटीन फॉलो करना, स्लीप शेड्यूल फॉलो करना, एंड इट वाज नॉट एकदम प्रेशर में, बट इट वाज वेरी स्मूथ, क्योंकि आई यूज्ड टू फॉलो अ रूटीन, और मैं पूरे आई वाज अ मॉम ओनली, आई वाज नॉट मी, आई वाज नॉट अ वाइफ, आई वाज नॉट एनीवन, आई वाज जस्ट अ मॉम हु वाज Correct. पूरा जो एकदम मतलब अपने बेटे के पीछे लगी रहती है हमेशा। फर्स्ट 3 years तो ऐसे ही निकला, एंड देन पैंडेमिक हैपेंड। was like he just turned मार्च में हुआ था, अप्रैल में ही टर्न 3। फिर उसके बाद तो काफ़ी टाइम हम घर पे ही थे, तो मतलब ऐसा कुछ था नहीं, बट हाँ, इवेंचुअली व्हेन ही स्टार्टेड स्कूल, फिर आई स्टार्टेड गेटिंग सम मी टाइम, सुबह से एटलीस्ट वो 2-3 घंटे के लिए मिलने लगा था टाइम। तो दैट उस टाइम पे आई थिंक आई केम आउट ऑफ दैट फेज, एकदम मम्मा मम्मा हो गया था, तो एकदम मतलब आई वाज अ मॉम। देन आई रियलाइज अच्छा लगने लगा था कि आई एम गेटिंग सम टाइम, मुझे अच्छा लगता था कि मैं टाइम में निकल रहा है, मुझे घर पे अपनी मन की चीज़ें कर रही हूँ, कोई शोर शराबा नहीं है, शांति है घर में, मतलब आई फॉरगॉट ऑल ऑफ कैसा लगता है ये शांति घर पे। बट धीरे धीरे जब पैंडेमिक का खत्म होने लगा, राइट स्टार्ट स्कूल, फिर मुझे अपना टाइम मिलने लगा। नाउ आई एम लाइक बस ऐसे ही, मतलब वो टाइम जब मिला ना तो आई रियलाइज कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना इज वेरी Important. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने लिए। फिर मैं मी एंड माई हस्बैंड वी ऑल्सो स्टार्टेड स्पेंडिंग सम टाइम टुगेदर, तो आई थिंक ये सब इवेंचुअली हुआ।
नॉट लाइक कि मैं एक इंसिडेंट मुझे याद है कि एकदम से हो गया, हैपन इवेंचुअली। Right. अभी आई एम मोर ऑफ माई सेल्फ देन ओनली बीइंग अ मॉम और अ वाइफ और अ डॉटर। अब लगता है कि आई एम बीइंग माई इतने सालों के बाद। Which is so nice. Like, मतलब there are so many women जो इतने सालों, I mean, साल मतलब सालों साल के बाद भी they don't feel that अच्छा I am XYZ the person, जो भी person है, मतलब उनकी आइडेंटिटी वो वाइफ या मदर या बहू मतलब वही बन के रह जाती है. एक्चुअली आपके द पीपल यू आर सराउंडेड विद उनके से भी काफी इम्पैक्ट। True, I think true. मेरे लाइफ में भी I have friends, I have 2-3 very good friends in my society itself. जो राहिल उनकी उनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई आफ्टर आई, Right. मतलब पार्क में खेलते थे बच्चे, तो दैट्स हाउ वी मेट एंड आई मतलब अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। फिर माय हस्बैंड इज वेरी मच, मतलब उनको चाहिए था, उनको भी मतलब ही इज वेरी मच सपोर्टिव। सपोर्ट भी क्या करना, मतलब बोलते हैं कि यार तुम थोड़ा अपना टाइम लो या फिर यू जस्ट टेक अ ब्रेक। ही इज ऑलवेज देयर मेरा वर्क प्रेशर कम करने के लिए। ही डज एवरीथिंग पॉसिबल जस्ट टू मेक मी फील। कभी कभी ओवरवेलमिंग तो हो ही जाता है, घर के काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बहुत सारी चीजें लाइफ में। सिर्फ ये तो नहीं होता ना जो हम लोग इंस्टाग्राम के स्टोरी पे देखते हैं। देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट हैपन इन लाइफ। बिन माय फ्रेंड्स, आई थिंक मेरे फ्रेंड्स भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस, मतलब उनसे भी हुआ। यू कम आउट, दे आर लाइक अपने लिए भी टाइम चाहिए, तो वो इम्पैक्ट आता है आपके ऊपर। यू गेट टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। तो आई थिंक वो द पीपल यू आर लिविंग विद और यू आर सराउंडेड विद, वो काफी इम्पैक्ट करता है आपकी ओवरऑल लाइफ, पर्सनालिटी, सब कुछ। तो मेरे साथ तो डेफिनेटली ये बहुत हुआ है, मतलब ये आई हैव एक्सपीरियंस दिस पर्सनली। सो आई थिंक ये एक्चुअली मैटर्स। What is Monica's ultimate self-care ritual, which does not involve cooking, which does not involve motherhood? सोफे पे जाओ, सो जाओ और फिर स्क्रॉल करो। दैट माय अल्टीमेट थिंग, जो मैं मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूँ क्या नहीं करना है, तो मेरा सेल्फ केयर यही है कि जस्ट जाओ, मतलब किसी से फोन पे बात नहीं करना है, नो मैसेजेस, नो नथिंग, कुछ नहीं, बस अपना अपने आप में रहो। तुम जो भी, मतलब आई बिलीव कि आप, मैं जो भी कर रही हूँ, अनप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे अपना टाइम चाहिए, मैं सो जाऊँ, लेट जाऊँ, बैठी रहूँ, मतलब वैसे, मतलब मेरा तो यही सिंपल। अभी प्रॉबेबली इस पॉडकास्ट के बाद भी मैं बस लंच करके आई विल जस्ट गो और मैं बैठ जाऊंगी और मैं थोड़ी देर स्क्रॉल करके फिर तब तक राइल के टाइम हो जाएगा जस्ट कम बैक होम। तो I think all of us are the same. You're the 16th guest, and they have all said the same thing. I have had women from different professions, या different career backgrounds, या different age. We are all the same eventually, deep down. कि हमें जब time मिलता है, we all do the same thing. बिकॉज लेट्स फेस इट, टाइम जब मिलता है तो हम बोलते हैं अरे यार ये कपड़ा रखा है इसको फोल्ड कर, अरे यहाँ पे गंदा है इसको मैं वाइप कर देती हूँ, मतलब दिस इज व्हाट वी डू। मतलब हमारे पास फ्री टाइम होता है तब भी, तो Correct. ये टाइम होता है जिसमें आप कुछ, बस आप सो जाओ, जो करना है आप करो, जस्ट डोंट टॉक टू एनीवन। मे बी आई तो डोंट लाइक टॉकिंग टू एनीवन, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं बोलूंगी, बट आई डोंट रिप्लाई टू मैसेजेस, आई डोंट पिक अप द कॉल्स, मतलब कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल हो आई डोंट पिक अप कॉल्स अगर मैं रेस्ट कर रही हूँ, तो आई डू दैट। आई थिंक अल्टीमेट सेल्फ केयर है ये मेरा। Which is good. Uh, okay, let's talk something fun now. What is that one thing which जो आपके followers को नहीं पता है आपके बारे में, but they'll be very surprised to know about you? आई एक्चुअली टॉक अ लॉट, और मैं जैसी स्टोरीज पे आई कम अक्रॉस एज अ सर्टेन पर्सन, मैं वैसे बिल्कुल नहीं। मतलब आई थिंक पीपल थिंक कि मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, और मतलब सो आई डोंट नो, मतलब आई थिंक आई हैव दैट इमेज कि मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही, मतलब बहुत अच्छा इमेज है टू बी ऑनेस्ट, जो कि आई थिंक रियल लाइफ में मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। मतलब नॉट लाइक ऑर्गेनाइज तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे लगता है कि लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं कितनी ऑर्गेनाइज और हाँ, यस आई एम पंक्चुअल,
वेरी पंक्चुअल, मतलब अगर मुझे बोला गया है इस टाइम तो आई विल बी देयर। मैं 5 मिनट पहले ही जाऊँगी, बट मैं लेट कभी नहीं। तो येस दैट इज़। और जो मैं इमेज, नॉट लाइक आई एम अ बैड पर्सन बट मतलब मेरा जो इमेज है ऑन इंस्टाग्राम वर्सेस व्हाट आई एम इन रियल लाइफ इज डिफरेंट। It's very different. इट इज़, क्योंकि मैं स्टोरी पे ऐसे आई डोंट शो ना व्हाट आई एम डूइंग, मतलब मैं बस लिखूँगी। अब नाउ दैट राइटिंग पार्ट आप उसको किस तरह से पढ़ते हो, वो मतलब इट कम्स, इट्स वेरी डिफरेंट देन Correct. मैं उसको फनी वे में प्रेजेंट करूँ या फिर मतलब इट्स लाइक दैट। हाँ, बट ये है कि आई एम वेरी मतलब बहुत कुछ सेम है, बट यस आई एम काफ़ी अलग देन माय स्टोरी इन रियल। Or you can talk about emotions also. Emotions भी मसाले ही होते हैं. आई डोंट नो, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग। Which is your favorite masala? जो हर चीज में पड़ता है. Like तेज पत्ता, if you cannot think of food without that masala. Don't say salt. तेज पत्ता हर सब्जी में तो डालती हूँ, हर चीज़ में। एंड लाल मिर्च फ्राइड मम्मी डालती है, मम्मी हर चीज़ में डालती है और वो पता नहीं क्यों डालती है, बट मैं मुझे भी आदत हो गया। आई कैन नॉट डू विदाउट तेज पत्ता। हर सब्जी में डाल डाल देती हूँ मैं। मेरी कुक को भी अब शी इज यूज्ड टू इट कि दीदी की सब्जी में तो तेज पत्ता जाना ही। Chai. आई कैन थिंक ऑफ एनीथिंग। Um, let's imagine suddenly somebody calls you and tells you, I'm coming to your house in the next 30 minutes. So, what is it that you will prepare? What's the real version of this thing? पैनिक नहीं, बट हाँ, जैसे कोई आ रहा है तो मैं सबसे पहले आई जस्ट गो एंड सी कि अरे यार वो टेबल में कुछ रखा हुआ तो नहीं है सामान, बस उसको उठा दूंगी। ऐसे यूजुअली घर क्लीन ही रहता है, बट बच्चा है घर पे, इधर उधर सामान रहते हैं, तो मैं बस अपनी माई फर्स्ट इंस्टिंक्ट पिक कर लो यार कि घर पे कोई आए तो एटलीस्ट प्रेजेंटेबल लगेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। और फिर सबसे सेकंड थिंग कि कोई आ रहा है उनको क्या देना है खाने के, बिकॉज यूजुअली मेरे घर पे उतने स्नैक्स होते नहीं है, क्योंकि हम लोग वी यूजुअली हैव फ्रूट्स एंड एवरीथिंग। तो याद करती हूँ कि क्या है और मैं क्या इंस्टेंटली उनको दे सकती हूँ, चाय और बिस्किट। तो दैट इज द टू थिंग्स दैट आई डू। कोई आता है, And what will be your go-to खाना for मतलब बनाने के लिए? सिर्फ बच्चे 30 आ रहे minutes. हैं तो मखाना, बड़े आ रहे हैं तो मखाना विच तो ऐसे ही आ जाते हैं। Nice. अदरवाइज मतलब स्नैक क्विक झटपट, ये दोनों चीजें रहती है। बिस्किट हमारे घर पे मिलते नहीं है, इसलिए आई यूजुअली हैव मखाना। बड़े कोई भी है तो बड़े बड़े बच्चों सबको पसंद आते हैं मखाना, तो हैव मखाना ऑलवेज। From cooking for yourself, yeah, for your family, for Rahil, for yourself, now cooking for an Instagram account where your followers look up to you. How has your relationship with food and cooking changed? मतलब आई डोंट थिंक इट हैज चेंज्ड। पहले भी मुझे खाना मुझे बहुत पसंद आई लव, तो वो चीज़ वो दिख जाएगा। आई लव फूड, तो मैं ये नहीं सोचती दैट आई एम कुकिंग फॉर माय इंस्टाग्राम पीपल, कुक फॉर माई सेल्फ एंड दैट्स व्हाट आई प्रेजेंट टू यू गाइस। Right. तो मेरा वो थॉट ही नहीं है कि मैं उनके लिए बनाऊंगी, मुझे अपने लिए बनाना है। व्हाट आई लाइक आई विल शेयर इट विद यू, तो वो इजी हो जाता है, इसीलिए मुझे उतना प्रेशर नहीं लगता ये कुकिंग का। तो And something that I've always wanted to ask you, जब लॉकडाउन चल रहा था, and people were like, oh, मैं क्या करूँ अब, मैं क्या खाना बनाऊँ? That is the time Monica was growing during the lockdown. How did you, think कि अब मैं क्या बनाऊंगी? How did you, live up to that challenge? जब लोग अपना literally they were pulling out their hair, what do I do next? How was Monica growing? मुझे बहुत ठीक से याद है, बट आई थिंक आई रिमेम्बर इट वाज मी, माय ब्रदर, राहिल एंड माय हस्बैंड। वी वर स्टेइंग, मतलब पैंडेमिक में लॉकडाउन पे हम चारों साथ में रह रहे थे। एंड जो भी है उस समय इंग्रेडिएंट्स भी मतलब काफ़ी हो गया था ना, पानी काफ़ी कुछ मिलता नहीं था बाहर, सब्जी नहीं Correct, मिलती, सब कुछ बंद था। तो लिमिटेड चीज़ों में आप क्या बना सकते हो? आप फैंसी तो कुछ कर नहीं सकते हो, आपको जो है आपको वही बनाना है। तो correct. कभी सोचना नहीं पड़ा, बट इंग्रेडिएंट्स थे जो है ठीक है ये बन जाएगा तो ये बना। एंड
वही बनाकर मैं उसको प्रेजेंट करती थी कुकिंग दिस। अब उसमें कुछ फैंसी नहीं होता था, बेसिक इंग्रेडिएंट्स ही होते थे ना। उस इनिशियल आई रिमेम्बर इनिशियल धीरे धीरे करेक्ट। वो इंग्रेडिएंट्स आने लगे। और आई एम नेवर इन नॉट इन टू फैंसी कुकिंग टू बी ऑनेस्ट। मैं घर पे भी उतना फैंसी, मेरी वॉट एवर आई कुक इज मोर, ज़्यादा से ज़्यादा फैंसी हो जाएगा पास्ता, पूरा बेक पास्ता मे बी, और नूडल्स, और नूडल्स यू नो मे बी नूडल्स विद चिली पनीर और एनीथिंग लाइक दैट, वो बोल में थोड़ा फैंसी वे में उसको सर्व कर। वरना मेरे घर पे रोज रोटी सब्जी और दाल बनती है। आई एम नॉट इनटू फैंसी कुकिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसीलिए पेज पे भी कभी नहीं है दैट है। मतलब रोज एवरीडे का। माय हस्बैंड इज आल्सो नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ बहुत एग्जॉटिक कुछ भी वैसा, तो ही नीड्स हिज बेसिक मील। और राहिल को दाल चावल दे दो यार, ही इज सो हैप्पी। मतलब पास्ता और नूडल्स ही एंजॉयज, मतलब ऐसा नहीं है कि विल जस्ट ईट डबल मे बी 2 bowls ऑफ पास्ता, बट दाल चावल भी वो उतने ही प्यार से खाता है। एंड ही मिसेज, आई थिंक वो देखा है मैंने कि वो, अगर मैं उसको 2 दिन फैंसी कुछ नॉर्मल टाइप का खाना दे रही, मतलब थोड़ा नॉर्मल टाइप खाना नहीं दे रही हूँ, तो ही विल स्टार्ट मिसिंग इट। एंड वो थर्ड मील जो मैं थर्ड डे जो उसको मील दूंगी ना, तो ही विल, वो खाते हुए आप देख लोगे तो प्यार आ जाएगा। एंजॉयज लाइक दैट। तो इट्स लाइक ठीक है, सबको घर पे वैसे ही खाने पसंद है। So, like all of us cook, चाहे वो मजबूरी में हो, चाहे वो प्यार से हो, like like whatever be the reason, or even if you have a cook, you still have to tell the person कि अच्छा ये बनाओ. And अभी तो सीन ऐसा भी है where people don't like cooking, they run away from cooking. How did you turn cooking food into, a sort of a career where people, say कि अच्छा, अगर मोनिका बना सकती है तो हम भी बना सकते हैं, because that is what your cooking looks like. मतलब everyday ingredients, everyday kitchen things, and then, making a career out of it, where you have 180,000 people looking at what Monica is doing every day. It's actually मतलब बहुत नेचुरली आया मुझे। मतलब आई जस्ट स्टार्टेड शेयर। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इट विल बिकम माय समथिंग दैट आई विल लुक फॉरवर्ड टू, या मेरा करियर, या मुझे इट विल बिकम अ, मतलब एक करियर टाइप्स मेरा बन जाएगा। आई नेवर Correct. थॉट, आई डिड नॉट स्टार्ट लाइक दैट। इट वाज जस्ट मैं, मुझे फोटोग्राफी का बहुत, मुझे काफ़ी शौक था उस टाइम पे। आई रिमेम्बर माय हस्बैंड गिफ्टेड मी अ कैमरा, और मैं फूड के पिक्चर्स खींचती थी बहुत एकदम प्रॉपर सेटअप करके, जब वीडियोस का ज़माना नहीं। तो आई यूज्ड टू लाइक इट, बहुत अच्छा लगा। और मैं सिंपल सिंपल को कुकिंग उस तरह से ही करने लगी थी। एंड देन इट डिड नॉट स्ट्राइक मी कि ये मेरा करियर भी बन सकता है। बट आई स्टार्टेड पोस्टिंग इंस्टाग्राम। उस समय तो पता भी नहीं था हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स एंड एवरीथिंग, बट आई स्टार्टेड पोस्टिंग एंड इवेंचुअली वो बन गया, हैपेंड। आई एक्चुअली डिड नॉट, मे बी आई, यू कैन से कि मैंने इसको प्लान नहीं किया था। विद प्लान इट मतलब इवेंचुअली इट हैपेंड। तो मुझे कभी समझ नहीं आया कि मतलब आज मैंने लुक बैक, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि यार व्हाट आई वाज डूइंग वर्सेस व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मतलब काफ़ी ह्यूज चेंज है। बट जब मैंने Correct. शुरू किया था इट वाज नॉट, बट इट वाज कि यार मैं, ऑनेस्टली एक फीलिंग था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। ठीक है, आई डोंट वांट टू, आई मतलब वो घर पे बैठे रहना वाज नॉट समथिंग आई वाज एंजॉयिंग ऑनेस्टली, क्योंकि फैमिली भी नहीं थी यहाँ पे, फ्रेंड्स नहीं थे, इट वाज अ न्यू सिटी। तो मुझे खुद तो कुछ करना ही था कि मैं, जिससे मैं बिजी रहूँ और मुझे अच्छा भी लगे। तो दिस वाज समथिंग दैट, मतलब मुझे याद है माय हस्बैंड के फ्रेंड्स ऑल ऑफ देम गिफ्टेड अस अ माइक्रोवेव बैक इन 2013 में। तो दैट उसके साथ एक रेसिपी बुक आई थी। उस टाइम पे मुझे खाना नहीं बनाना, मुझे मैम मुझे बस एक बेसिक आलू की सब्जी और रोटी बनाने आता था। वो भी अच्छे से नहीं बनती थी, बट आई यूज टू फीड बोथ ऑफ कि मेरे हस्बैंड भी खा लो और मैं भी खा लूँ खाना। तो उतना ही आता था। फिर वो आई गॉट अ रेसिपी बुक एंड अ कपल ऑफ मोर बुक्स फ्रॉम इधर उधर से, कुकर में मिलता था टाइम का, आई रिमेम्बर प्रेशर कुकर Correct. में भी रेसिपी बुक था। तो उसी से मैंने सीखना शुरू किया, स्टार्टेड फ्राइंग रेसिपीज इन द माइक्रोवेव। बेकिंग शुरू हुआ था, आई रिमेम्बर मेरा फर्स्ट केक उसी टाइम पे मैंने बनाया था माइक्रोवेव। तो वैसे ही लर्निंग शुरू हुई ना, स्टार्टेड मतलब काफ़ी अच्छा लगने लगा था। बट आई वाज डूइंग समथिंग, फुल डे मैं किचन में रहती थी, और आज ये बनाऊंगी, आज वो बनाऊंगी। मैं मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स को मैं वो ट्राई करवाती थी कि ये ट्राई करो, बताओ क्या। ठीक है, तो ये सब था फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज।
बहुत हुआ ये एक्सपेरिमेंट एंड एवरीथिंग, एंड इवेंचुअली वो एनोनिमस ब्लॉग हुआ, देन फाइनली उसमें ब्रेक भी नहीं लगा था, एंड दैट इंस्टाग्राम पे आई स्टार्टेड पोस्टिंग पिक्चर्स। टाइम पे पिक्चर्स का ही था, तो आई यूज्ड टू पोस्ट पिक्चर्स, एंड ब्लॉग पे तो रेसिपीज होती थी। एंड देन फिर राहिल हैपेंड, तो ब्रेक लगा 3 इयर्स, मतलब राहिल के मतलब इवेंचुअली 2 इयर्स के बाद मैंने इंस्टाग्राम पे शुरू किया, एंड पिक्ड। मैंने उस टाइम पे ये सोचकर बिल्कुल नहीं किया था कि मैं मुझे वो पिक कर लेगा या समथिंग लाइक दैट, आई जस्ट स्टार्टेड Right. पोस्टिंग। मुझे पता भी नहीं था हाउ टू मेक अ करियर ऑन इंस्टाग्राम और समथिंग। एज अ कंटेंट क्रिएटर आज मैं ऑब्वियसली व्हेन आई लुक बैक तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया है इन 4 इयर्स में। yes, शुरू किया था सोच के नहीं। नाउ आई थिंक अबाउट इट कि मुझे ऐसे कैसे ग्रो करना है आगे, पर जब स्टार्ट किया था तब ये सब कुछ भी नहीं था। मतलब यू आर एन इंस्पिरेशन। विमेन थिंक हमारे पास कोई स्किल नहीं है। यू सेड यू यूज्ड टू मेक दैट रोटी एंड आलू की सब्जी, फ्रॉम देयर ग्रोइंग with recipe books, experimenting, and now you're cooking food which मतलब 8 बजे पोस्ट किया और 8:30 बजे लोग बना के पोस्ट, वो उसी के पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं। आई थिंक that's a major growth. It's like a huge growth from roti and aloo ki sabzi to experimenting, and then people experimenting with you. एग्जैक्टली वही वी मी एंड माय हस्बैंड हम लोग कभी डिस्कस करते हैं, ही नोज हाउ मच पीपल लव्स मी। एक एक लोगों के मैसेजेस आते हैं, या फिर माय रेसिपीज, स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ रेसिपीज के लिए, मतलब आई नो पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट, पीपल ट्राई। तो मतलब उसमें मैं कुछ मतलब इट्स लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग। क्या मैंने शुरू किया था वर्सेस व्हाट इट इज नाउ इज लाइक ह्यूज फॉर समवन लाइक मी, मतलब कुछ भी जिसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं हुआ करता है यार एक टाइम पे, कि अभी मैं बैठकर आपसे बात कर रही हूँ ना, मुझे वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता वो प्रॉब्ली 4 साल में। has changed a lot of things for me, for my family, in every मतलब मुझे लगता है कि it has changed me। अगर मैं इतनी खुश हूँ आज तो obviously it impacts people around also। So yes, ऐसा है, मतलब it has, this platform has changed me, my everything। I am sure coming to that phase from there to अगर मोनिका ने एक ड्रेस पहन ली, आई नो 1 घंटे बाद वो आएगा, but don't ask me, this is the link, because people do ask you. I'm not saying this is fake. ऐसा होता है, like because you're a normal person, मतलब you could have been my neighbor, कि हाँ मतलब मेरी नेबर है जो मतलब खाना बनाती है, and people look at her, they love her recipes, they love what they are doing, and you're not a very fancy person, अच्छा हाँ मतलब बनाया, मतलब वो आ रहा है कि हाँ मास्टर शेफ में गई, फिर वहां से फैंसी कुक बन गई। मतलब you are a self-made person, and I think that is what all of us love about you, and that is what we connect to, कि हाँ she's like us। That's मैंने ये I think कहीं बीच में भी बोला था कि if मोनिका कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। If she can make this, then we can also make this। It's not something, मतलब it's not that fancy cooking कि हाँ माइक्रोवेव में पहले इसको प्री हीट करो, फिर इसको एयर फ्रायर में डालो, बिकॉज मोनिका ने बोला है तो हमें एयर फ्रायर भी लेना पड़ेगा अब। मेरे पास खुद भी एयर फ्रायर नहीं है अभी तक। So I'm like, हाँ, so that is what I'm saying कि you are that everyday person, मतलब you could have been like anybody's neighbor, मतलब उस तरीके का that image you have। Before I let you go, like one last question which I ask everyone, if you could give an advice to a younger Monica, what would it be? You should have, कि कुछ ऐसा होना चाहिए आपको, इवन इफ यू डोंट नो, बट इफ यू एंजॉय समथिंग, आपको पता है कि इफ यू लाइक टू डू दिस। मुझे आई थिंक ये कुकिंग का ना बचपन से ही था। मैं आई लुक बैक, मेरी मम्मी भी बोलती है ये बात कि मुझे था। तो इफ यू हैव समथिंग, इवन इफ थोड़ा सा जस्ट ट्राई करो कि यू आर एबल टू डू इट फॉर योरसेल्फ, समथिंग दैट यू रियली एंजॉय। जो कि प्रोबेबली पहले कुकिंग को इतना बहुत ही, कुकिंग इज अ वेरी, आई थिंक मैं क्या बोलूँ, मे बी अगर आप इफ यू आर कुकिंग फॉर पीपल, they family में especially, nobody thanks, you make cooking Correct. something, it's not like if people are not grateful for the food that they're getting, but उनके मुंह से कभी निकलेगा नहीं, because it's not something to thank people about।
if you have something, just if you like doing something, just go ahead. कुछ भी अपने लिए, not like कि आपको उसको full fledged career ही बनाना है, do it for you. जो कि मैं पहले नहीं करती थी. I started, मैंने बोला ना, मैं 4 years में जो मैंने चेंज आए हैं मेरे अंदर, only because of this thing, cooking की मेरी रेसिपीज है, तो it has a overall impact काफी high है. तो ये would say कि सबको एक ना एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो आपको सिर्फ आप अपने लिए कर, not for anyone Right. else, just for you. This is something that I wish मुझे किसी ने पहले बोला, करो अपने लिए. I'm glad कि That's आज मैं very अपने लिए nice. That's a beautiful advice. Thank you so much, Monica, for doing this with me, for letting me know about your life, your behind the scene Instagram stories, कि क्या हो रहा है, how do you come up with recipes. I am sure people who you tune in and listen to the episodes, they will love knowing about you and love knowing that हमारे में एक skill है तो हम उसको कैसे use कर सकते हैं. Thank you for Thank you having me. so much, अच्छा लगा, Monica. और मुझे